GST, Chartered Accountant Perspective. This is a very important topic today, and there are many opportunities which a chartered accountant can have and can issue the certificates. For this, today we had a speaker, CA Navya Malhotra. He is from New Delhi. So before starting, I request CA Meenakshi Sharma to kindly give the brief introduction of the sir. Am I audible? Hello. Yes, yes. Yes, please go ahead. Thank you, Amish, for giving me this opportunity. Good evening, everyone. I am Meenakshi Sharma, and it is with great pleasure that I introduce today's speaker, CA Navya Malhotra. He's a member of the Institute since 2016. He has done his graduation from the University of Delhi. He also holds a Master in Commerce. As a post-qualification course, he holds a Diploma in Information Systems Audit and is a certified GST member of the Institute. He's a regular partner at various respected forums and platforms, including ICAI and CMA. He is also a faculty at NIRC of ICAI and a registered and appellant faculty with the Indirect Tax Committee of ICAI. He has deliberated in more than 250 seminars, workshops, and open discussions on GST. His most prestigious deliberation includes sessions to the senior IAS officials and military officials at the Indian Institute of Public Administration, Training and Research, and also to senior banking officials at the National Institution of Banking Studies and Cooperative Management, Delhi. He's a regular writer and author to many discussion forums, magazine, and portals. He's one of the he's an author and editor to GST Samadhan portal. He is an author to NIRC of ICAI monthly magazine for CM members and various NICASA publication from time to time. He's a writer to Vipka Journal published by VIP Road Chartered Accountant Association, Kolkata. He's also a writer to many online discussion forums like taxguru.com. He was in the past associated with ENY and KPMG India in indirect tax and accounting advisory practice and holds diverse exposure to statutory audits, risk, and other management consultancy, along with knowledge base of Ind AS advisory and IFRS consulting. With that brief introduction, I welcome you, sir, on behalf of Andheri Oshiwara Study Circle and request you to start the deliberation. First of all, a very good evening to all of you. I hope I'm audible, Meenakshi ji. Yes, sir. A very good evening to all of you. Namaskar आप सबको और Meenakshi ji, thank you for such a warm welcome and such beautiful words of welcoming. I would like to thank the whole study circle for giving me an opportunity before actually I start, and special mention to Amish ji, who is a close friend of mine, and we are particularly discussing many things about GST now and then, and closely I am very happy that Amish ji is now managing to actually get the speakers all across the nation. Amish ji is the I'll say you have set an example for taking the advantage in this pandemic situation. So Amish ji, thank you so much, and to the Thank whole you, sir. study circle, Deputy Convener Deepak ji, the committee members Aditya, Anisha, Utkarsh, Manthan, Sanchit, Sachin, and Nikhil ji. It is indeed my pleasure to actually not physically but virtually able to connect to the members of Mumbai Study Circle. Topic, as Amish ji has told me, has to be kept very innovative, and particularly Amish ji, please allow me. Can I speak in both English Hindi, or is it English only that I have to speak? You can speak both. So partially I'll try to put it across in both the languages, in English and Hindi. So Amish ji wanted ki the topic should be very innovative regarding certifications under GST. When I talk about certifications under GST, तो एक mindset हमारा develop हो जाता है कि it's only we need to sign a certificate, and signing entirely has changed its shape since UDIN has been introduced. Let us well accept the fact whenever we actually put UDIN on some certificate, we actually now target to put some more stress on certificate
rather we used to put it earlier before the introduction of UDIN. तो अब UDIN की वजह से सर्टिफिकेशन और क्रिटिकल हो जाता है हमारे लिए, और हमारा थॉट और प्रोसेस चेंज हो जाता है, शेप और विजन चेंज हो जाता है जब हम एक सर्टिफिकेट साइन करते हैं. और मैं आप सबसे बिफोर एक्चुअली आई प्रोसीड फर्दर, मैं आपसे चाहे चैट बॉक्स में ही इफ यू कैन राइट इट डाउन, हाउ मेनी ऑफ द मेंबर्स हैव फॉर नाउ issued any certificate in GST, any certificate from its inception, अभी GST को इंट्रोड्यूस हुए. और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कितने टाइप के सर्टिफिकेट्स देखे हैं, या आपने कौन से टाइप का सर्टिफिकेट, जस्ट टू एक्चुअली ब्रेक द आइस, आई एम आस्किंग यू कि have anyone issued any certificate in GST? If you can write it down in the chat box, please. Any certificate? Aditya ji says, yes, I have issued a certificate. Okay. Good. Aditya ji says, I have done ITC transfer for merger. Sir, Aditya ji, if you can just unmute yourself for a minute. Aditya ji, if I am wrong, just correct me. आपने ITC 02 के साथ एक सर्टिफिकेट सेक्शन 18 का अटैच किया of the transfer of input tax credit. Correct. Aditya ji, you kept in mind that it is for exceeding 2 lakh rupees. Yes. Yeah. Okay. So ideally आदित्य जी ने एक सर्टिफिकेट इशू किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरा मर्जर का सर्टिफिकेट था and it was for the merging of 2 entities or more where the input tax credit of the merging entities into the merged entities had to be transferred using ITC 02. So Aditya ji, did you find that certificate a bit critical certificate? Actually, there was no format as such prescribed by the institute also at the time when I had issued the certificate. Okay. So after they got the checklist template or something, after that it was issued 1 month or 2 months after that. So आदित्य जी ने कहा कि मैंने सर्टिफिकेट बनाया, फॉर्म डिजाइन किया और इशू करा. So it would have been a very tough situation at that point because मैं आपसे आज जितने भी सर्टिफिकेट्स को रिलेटेड डिस्कशन करूंगा, आदित्य जी will vouch to the fact when I reach up to his certificate that whenever we sign a certificate in GST, we first of all are stuck up with one problem, that is where to find the format. Second, we are stuck up with the biggest problem, what all do we need to check. Third, एक्चुअली लेट मी शेयर द स्क्रीन, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना नोटपैड पेन लेके भी रखेंगे एक बार साथ में, बिकॉज आई विल शेयर द स्लाइड बट आई प्रेफर मोर ऑफ पुटिंग माय थॉट्स ऑन द स्क्रीन फर्स्ट, देन आई विल शेयर द स्क्रीन अक्रॉस द प्रेजेंटेशन टू द मेंबर्स. चलिए मैं आपसे सिंपल एक बात पूछता हूँ. सबसे पहला मन में एक सवाल उठ के आता है जो आदित्य जी के भी मन में आ गया था. First thing is whether applicability of certificate is not, ये हमें पता लगाना मुश्किल हो जाता है, whether actually we need to issue the certificate in this case or not. First of all, this is the question. Second is about if yes, then where to find the format. Second. Third, we are stuck up with the biggest problem is what all is my responsibility. When I say my, I am saying issuer, the person who is issuing the certificate, what is the responsibility and what is the documentation needed. आपको क्या क्या अपनी फाइल में रखना होगा just to issue a certificate under GST. Particularly what I was looking for in the chat box also, that there might be many members who have issued a certificate under GST for issuance of refunds. Have anyone issued a certificate for refund? Let's say inverted duty structure, exports, any type of refund. Is any member issuing any certificate? I just need to ask one simple question on that.
यस और नो सर? अभी तक किसी का जवाब नहीं आया कि सर्टिफिकेट इशू रिफंड का किया है नहीं किया। चलिए तब तक थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, तब तक आई एम एक्सपेक्टिंग members to please respond on the chat box, because then it will be a more of interactive session rather than a theoretical session. I just want to put across the session very practically, so I need all of your participation in this. Please keep on responding. So when I come to certificates, can any member please unmute and just share their thoughts about, is there any difference between they find for the certificate and report? ये तो शुरू से ही हम सबको पता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है. फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्टिफिकेट वर्सेस रिपोर्ट. कैन एनी मेंबर प्लीज एक्सप्रेस देयर थॉट ऑन दिस सर्टिफिकेट वर्सेस रिपोर्ट? जस्ट अ ट्राई. Sir, please, can anybody try what is the difference between the certificate and the reports? Please, anyone? Any member? Participants can raise their hand. We can unmute them then. After Acha. that, Okay. Please, participants. raise the hand. Whoever wish to say anything. सर किसी का कोई थॉट है सर्टिफिकेट और रिपोर्ट के ऊपर? चलिए. अगर हम एक ऑडिटर के लिए ऑडिटर रिपोर्ट और सर्टिफिकेट की बात करें, अगर हम एक ऑडिटर के लिए ऑडिटर रिपोर्ट और सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं आपसे. ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट. कमलेश जी हैज रिटन दैट सर्टिफिकेट इज अ फैक्चुअल वेयर रिपोर्ट इज एन ओपिनियन. ओके ओके कमलेश जी, बिल्कुल ठीक है, एप्रोप्रिएट. ओके. So when I talk about audit report, मैं अभी आपके साथ types discuss करूं उससे पहले मैं आपके साथ I want to put across a thought in your brain that what actually and why actually we need a certificate in GST. Is it just a professional opportunity for us, or is it just more than that? It is carrying a lot of responsibilities. Let me make it clear that a certificate, as even Kamlesh ji said, it is factual. It's not your opinion. Let's say auditor's certificate. Auditor certificate is a confirmation of the correctness and accuracy about the said underlying matter, whereas a auditor report is an expression of an opinion about the matter. What is the basis? Sir, when I talk about the basis, the report which we talk about is based on certain assumptions. However, certificate is based on actual facts and figures. Certificate is a basis on actual facts and figures, whereas report is based on assumptions. There can be some criticism about the report, but there is no scope of criticism about the certificate. When I talk about report, report has a large scope, while or certificate has a limited scope. I can say it is more of an accurate matter, whereas the scope of audit report is more of elaborate matters. It is giving the constructive advice in the company, whereas यहां पर हम एडवाइस नहीं करते, हम अपना कमेंट करते हैं. हम एडवाइस नहीं करते, हम कमेंट करते हैं. व्हाट इज द टाइम ऑफ इशुएंस? देखिए, अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट तो आपका हर साल जानी ही जानी होती है. सर्टिफिकेट कैन बी प्रायर सर्टिफिकेट और पोस्ट सर्टिफिकेट. लेट से अगर हमें कोई प्रायर रिफंड लेने से पहले सर्टिफिकेट देना है तो दैट इज अ प्रायर सर्टिफिकेट. अगर हमें लेट से कोई एंटी प्रॉफिटेरिंग से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन देना पड़ता, दैट इज अ पोस्ट सर्टिफिकेट. व्हाट इज योर लायबिलिटी? Your liability is merely of an opinion.
यहां पर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन और अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग लगा के अगर आपने ऑडिट किया है तो आप अपनी ऑडिट और अपनी डॉक्यूमेंटेशन को सपोर्ट करते हुए सब्सटैंशिएट कर सकते हैं. However, in case your certificate goes wrong, your responsibility is more. I'll say it is responsibility is huge. यानी कि your responsibility in case of issuances of a certificate is more than the responsibility in cases of an audit report. I will say it has to be more and more of audit certificate accuracy level has to be more. What is actually a difference between your limited assurance and reasonable assurance? लिमिटेड अश्योरेंस और रीजनेबल अश्योरेंस, यहां से हमारे को सर्टिफिकेट के ऊपर और कुछ भी जानने को मिलेगा. बिफोर एक्चुअली शेयर, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज अ डिफरेंस दे फाइंड बिटवीन अ लिमिटेड एश्योरेंस एंड अ रीजनेबल अश्योरेंस? लिमिटेड और रीजनेबल अश्योरेंस, प्लीज एनीवन, if they can write in chat box or unmute or raise their hand, please. So when I talk about limited assurance, I want to say, let me share the screen again. Yes. So when I talk about limited assurance means obtaining the understanding of the underlying subject and other engagement sufficient to enable the practitioner to identify areas where material misstatements is likely to arise. But वहां पर क्या होता है? यहाँ पर होता है to assess the risk और उस हिसाब से आप assurance दे पाते हैं. यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है in obtaining an understanding of the underlying subject under a paragraph, the practitioner should consider the process to prepare the subject matter. However, यहाँ पर आपको पूरा internal control और पूरा matter understand करके आपको design evaluate करके controls develop करने पड़ते हैं. That is again a big evidence. यहाँ पर हमें evidence obtaining के ऊपर भी दोनों के ऊपर अपना decision identify करना होता है. देखिए, अगर आप लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहे हैं तो आपको एडिशनल प्रोसीजर्स आर नेसेसरी. हाउएवर यहाँ पर रिस्क असेसमेंट से काम हो जाता है. व्हेन आई टॉक अबाउट सर्टिफिकेट, जब हम सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो मेनी अ टाइम्स आर जुडिशियली a chartered accountant certificate has been substantiated as an admissible document to the court of law. यहाँ पर बहुत सारे केस लॉज मैंने आइडेंटिफाई करे जहां पर हमारे सर्टिफिकेट को रिजेक्ट नहीं, उसको अपहेल्ड किया गया है और आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू को माना गया है. whereas there are many cases in which it has also not been considered as admissible. तो हमारे पास वैरायटी आपको दिखेगी इन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स व्हेन आई से अबाउट certificate, whether is it admissible in the court of law or whether is it not admissible in the court of law. That depends on the nature and the type of certificate that has been issued. चलिए थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं आगे. यूडीआईन के बारे में बात करता हूं हल्का सा और वहां से हम जीएसटी को लिंक करके चलेंगे अब साथ में. When I say UDIN, there are multiple times which is outside my discussion purview. There is some practitioners illustrative guide on the portal जहां पर ये आपके टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स यूडीआईएन के लिए दिखते हैं और उसमें एक सर्टिफिकेट जाकर हमें दिखता है सर्टिफिकेशन फॉर क्लेम ऑफ रिफंड अंडर जीएसटी एक्ट और अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस और साथ में दिखता है एक अदर्स. ध्यान से सुनिए, एक सर्टिफिकेट दिखता है अदर्स. यहां से हमें जाके देखना पड़ता है कि हमारे को टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स जीएसटी में कितने इशू करने पड़ते हैं. क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि आपको कितने टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स लगते होंगे जीएसटी के अंदर? प्लीज कोई बता पाएगा कितने टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स होंगे जीएसटी के अंदर? टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, एनीबडी कैन गेस प्लीज in the chat box? If anyone can guess in chat box.
चलिए सर, सबसे पहले सबसे कॉमन सर्टिफिकेट को पिक करूंगा आप सबके लिए। हम सबके लिए जो सबसे आम सर्टिफिकेट है, कॉमन सर्टिफिकेट है, दैट इज सर्टिफिकेट फॉर रिफंड्स। Certificate for refunds. This certificate of refunds is actually applicable where your refund value exceeds 2 lakh rupees, 2.5 lakh rupees. यहाँ पर refunds के अंदर सर मेरे पास कितने किस्म के refunds होते हैं जीएसटी में? वैसे तो n number और numerous types of refunds available भी हैं, types and varieties available हैं। मेरे पास जो सबसे important, अगर आप देखेंगे, मैं आपको refund की categories दिखाने के लिए, ये देखिए मेरे पास पोर्टल पे जब हम बात करते हैं कितने किस्म के रिफंड्स आते हैं, तो मेरे पास टाइप्स एंड वैरायटीज ऑफ रिफंड्स हैं सर। टाइप्स एंड वैरायटीज ऑफ रिफंड्स हैं। अगर आप देखते हैं तो ये पोर्टल पे पूरी रिफंड की कैटेगरीज आती हैं। व्हेन आई से यू हैव अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, इनपुट टैक्स ज्यादा पे हो गया, एक्सेस पे हो गया, कैश ज्यादा डिपॉजिट हो गया, इंट्रा को इंटर मान लिया गया, और एनी अदर ग्राउंड्स, अगर आपके इतने टाइप ऑफ रिफंड्स हैं तो आपके रिफंड्स के अंदर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज देते हुए आपके सर्टिफिकेट्स की बात की। सर, लिस्ट ऑफ टोटल सर्टिफिकेट्स आप देखें अगर, तो मेरे पास एक सेक्शन 18(1)(a) का सर्टिफिकेट है, बी सी डी का सर्टिफिकेट है, ये भी हम सारे डिस्कस करेंगे सर्टिफिकेट्स को। सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 का सर्टिफिकेट है, रिफंड्स के सर्टिफिकेट है, कैंसलेशंस के सर्टिफिकेट हैं, कॉम्पोजिट वाले सर्टिफिकेट हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं जीएसटी के अंदर। चलिए एक एक करके एक सर्टिफिकेट को खोलता हूं सर। पहले सर ये फाइल मैं शेयर भी कर दूंगा। इट हैज द फॉर्मेट्स आल्सो, types of particular information that is needed in each certificate also. That will be a much better guide in case we want to check for refunds, how to actually check for refunds. चलिए सबसे पहला सर्टिफिकेट आएगा मेरा रिफंड का, जो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करना चाहूंगा। दैट विल बी रिफंड्स सर्टिफिकेट। That is under section 54. A refund certificate has to be issued under section 54. Let me jump to that certificate now. Sir, certificates under section 54. यहां पर आप देखेंगे सेक्शन 54 में क्या बोला गया है, इन केस व्हेन वी नीड अ सर्टिफिकेट। यहां पर बोला है आपको रिफंड लेते समय ये एक रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करनी होती है दैट incidence of tax, interest and any other amount claimed as refund has not been passed to any other person, and in case the refund amount exceeds 2 lakh rupees. अगर आपका रिफंड की अमाउंट एक्सीड कर गई 2 लाख से ऊपर, तो आपको ये इंश्योर करना होता है कि मेरा कोई 2 लाख से ऊपर का रिफंड अगर जा रहा है तो कोई इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब यानी कि कोई अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होनी चाहिए। Just to avoid the unjust enrichment, आपको रिफंड का ध्यान रखना होता है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको इसमें आपको कैलकुलेशन चेक करके नहीं देनी होती, आपको ध्यान से सुनिए, कैलकुलेशन चेक करके नहीं देनी है। आपको सिर्फ ये चेक करना होता है कि क्या कोई अनजस्ट एनरिचमेंट ITC has not been passed its incidence to any other person. यहां पर आपको क्या देनी होती है सर? रीजनेबल अश्योरेंस। रिस्क असेसमेंट करके अपनी रीजनेबल अश्योरेंस देनी होती है दैट इंसिडेंस हैज नॉट बीन पास्ड। एक मिनट के लिए ध्यान से सुनिए सर। सर्टिफिकेट की अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो अभी हम देखेंगे इसको। रिफंड अंडर सेक्शन 54 किस किस नेचर का अप्लाई होता है? यहाँ पर जीरो रेटेड सप्लाई, दैट इज एक्सपोर्ट्स, अनयूटिलाइज्ड ITC, ठीक है। यहां पर देखिए वेयर द रिफंड वाउचर हैज बीन इशूड, गलत टैक्स जमा हो गया हो, CGST SGST की जगह IGST जमा हो गया, और he has not passed the incidents to such any other person. यहां क्या लिखा है? The chartered accountant is required to certify that the incidents
in application of refund has not been passed and in case such amount exceeds 2 lakhs. इसमें आप क्या क्या चेक करते हैं सर, मुझे ये बताइए. मैं आपसे पूछता हूं, किसी ने अगर रिफंड का सर्टिफिकेट साइन किया हो तो वो क्या क्या चेक करते हैं सर इसके अंदर? सर इसमें क्या क्या चेक करते होंगे आप, मुझे बताइए सर. सर आप यहां पर चेक करेंगे वेदर द रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स आर करेक्ट और उसके हिसाब से आप आगे चलेंगे. आप कॉपी ऑफ रिफंड क्लेम मांगेंगे एंड चेक वेदर द रिफंड हैज बीन मेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट और उसने कोई गलत टाइम नहीं है रिफंड नहीं किया होगा. All amounts must have been carried in the balance sheet as current assets and not. देख लीजिए सर, यहाँ पे पता लग जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट से कि पता लगे कैपिटलाइज भी कर दिया, डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहा हूं और इधर रिफंड भी लेने के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है. ड्यू टू अनसर्टेनिटी इज नॉट फैटल और यहाँ पर आपका रिफंड का सर्टिफिकेट आएगा. Ensure the applicant is not barred from claiming the refund. कैसे 2 साल का समय निकल गया हो या कोई और उसने रिफंड की कैलकुलेशन में, लेट से मैं आपसे बात करता हूं, स्क्रीन देखेंगे एक बार. अगर मैं रिफंड्स की बात करूं तो अगर लेट से आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड लेते हो और एक्सपोर्ट्स का रिफंड ले रहे हो तो आपके पास होता क्या है, इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स. आप रिफंड किस किस चीजों का ले सकते हैं सर? कैन एनीवन कमेंट कि किस किस चीजों का रिफंड मिलता है? क्या इनपुट का रिफंड मिलता है, इनपुट सर्विस का रिफंड मिलता है या कैपिटल गुड्स का रिफंड मिलता है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए सर प्लीज. किस किस चीजों का रिफंड मिलता है सर? प्लीज राइट इन दी चैट बॉक्स. पसंद जी सेड ओनली इनपुट्स. ओके, मैं इन्वर्टेड ड्यूटी की बात कर रहा हूं पहले. ओके, अमीन जी ने भी कहा ओनली इनपुट्स. ओके, और सर और बिल्कुल एप्रोप्रिएट, ठीकली कहा गया है सर, ये करेक्टली बोला उन्होंने कि यहाँ पर इनपुट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिफंड मिलता है किसका? इनपुट्स का. यानी कि कैपिटल गुड्स का और इनपुट सर्विस का रिफंड नहीं मिलता. यहाँ पर कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस का रिफंड नहीं मिलता. सर अमीन जी, बसंत जी, प्लीज हेल्प करिए मुझे. एक्सपोर्ट्स के केस में किस किस चीजों का रिफंड मिलता है सर? एक्सपोर्ट के केस में किस किस चीजों का रिफंड मिलता है? Can anybody please help on this? In case of exports, what all refund do you get, sir? Input, input service or capital goods? Can anybody please help in this? Sir, participative रखेंगे तो और मजा आएगा. Otherwise, it will be a theoretical session in that case, sir. Basanji said inputs. Okay. Okay. अमीन जी, आपका कोई पॉइंट? आदित्य जी कह रहे हैं सारे मिलेंगे. अच्छा, अमीन जी कह रहे हैं कैपिटल गुड्स ऑल्सो. ओके, सर ध्यान से सुनेंगे. इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट्स, we need to note one important point. Whether we are making supplies with LUT or without LUT. यानी कि I am making supplies with payment of tax or without payment of tax. Let's say I am making it with LUT, that is meaning without payment of tax, I would be allowed and made eligible for refund of inputs and input service. But when I am making it with the payment of tax, it is in auto refund through customs.
इसमें आपको इनपुट तीनों का रिफंड आ जाता है, इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स. यू गेट द रिफंड ऑफ ऑल थ्री इन दिस केस. एम आई मेकिंग इट सेंस सर? यहाँ पर आपको समझ आ रहा है? अगर आप LUT के थ्रू करते हैं, जरिए करते हैं, तो आपको इनपुट्स और इनपुट सर्विस का रिफंड मिलता है. और अगर आप LUT के बिना करते हैं तो आपको रिफंड मिलेगा किस चीज का? थ्रू inputs, input service and capital goods, because it is auto refund through customs. Your GSTR1 is itself an application of refund. Once you file 1 and 3B should match. तो उसमें कैपिटल गुड्स का ऑटोमेटिकली रिफंड खुद ही आ जाएगा आपके पास, आपको नहीं लाना होता. इज इट क्लियर सर? सर यस और नो लिखिए. सर प्लीज यस और नो लिखिए साथ साथ. चलिए समझ आ रहा है सर, ठीक है. थैंक यू सर. कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग सर. उससे क्या होता है सर, एक मोटिवेशन लेवल हाई रहता है कि सर वी आर एक्चुअली इन द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. चलिए थैंक यू सचिन जी. आई होप हमें इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही है. चलिए, जब हम रिफंड्स लेने गए, मैंने आपसे बोला रिफंड लेने गए, आपने कहा सर ये रिफंड्स के केस में हमने देखा हमें यहाँ पर इन्वर्टेड है या एक्सपोर्ट्स हैं. अगर इन्वर्टेड होगा तो हमें रिफंड इनपुट सर्विस का नहीं मिलता. सर व्हाट आई वांट टू से इज वेयर, थैंक यू बसंत जी, यू आर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रिफंड्स. Where you are making application of refunds whether on portal or manually. Refund of capital goods is not allowed. तो ये चीज हमारे को इंश्योर करनी पड़ेगी कि क्या वो रिफंड एक्सेसिव तो नहीं ले रहा, क्या वो रिफंड आउट ऑफ लिमिट तो नहीं ले रहा, क्या वो रिफंड कैपिटल गुड्स का तो नहीं ले रहा. तो सर इसके लिए वैसे भी गवर्नमेंट ने एक आपके लिए नई फैसिलिटी लॉन्च की थी, ध्यान से देखेंगे सर. देयर वाज अ न्यू एनेक्सचर. ये एनेक्सचर आपको रिफंड अप्लाई करते समय लगाना होता है पीछे. ये एनेक्सचर क्या कहता है, यहां पर उसने इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स और HSN SAC का भी गैप आपको लिखने को बोला है. यानी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर मैंने आपसे पहले ही रिफंड अप्लाई करते समय, सो व्हेन द स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड और आप सर्टिफिकेट बना रहे होंगे इसका, तो आपको ये ध्यान रखना होगा दैट दिस एनेक्सचर कंटेन्स इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स. और समझ लीजिए सर, अगर सर्विस होगा तो ऑटोमेटिकली SACA ही आ रहा होगा, और अगर गुड्स होंगे या कैपिटल गुड्स होंगे तो आपका HSN आ रहा होगा. और आप सबको पता है सर 1 to 98 तक HSN होते हैं और 99 ऑनवर्ड्स SAC होते हैं. तो मुझे ये पता होना चाहिए अगर हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड कर रहे हैं तो सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में SAC वाला रिफंड नहीं लेना होगा, तो वो स्टेटमेंट में नहीं आ रहा होता है यहाँ पर. हाउएवर अगर ये एक्सपोर्ट्स का रिफंड होगा तो आपको देखना होगा कैपिटल गुड्स तो नहीं मांग रहा वो, तो ये आपको रिड्यूस करके चलना होगा. ये हमारे लिए एक क्रॉस पॉइंट है चेकिंग का, ये हमारे क्रॉस पॉइंट्स हैं चेकिंग के सर, ठीक है. साथ साथ हम क्या चेक करेंगे, हम एक डिक्लेरेशन ले लेते हैं सर, हम एक डिक्लेरेशन ले लेते हैं कि भाई क्या वी हैव नॉट क्लेम रिफंड ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक्स. सर यहां पर भी सबसे क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, many cases I have seen that many of our members have signed CA certificate without taking a declaration from your client that he has gone for the duty drawback refund. सर जब आप रिफंड अप्लाई करवा रहे हैं और आप लिख रहे हैं 2 लाख से ऊपर है और इसका बेनिफिट पास ऑन नहीं हुआ है, देयर इज न अनजस्ट एनरिचमेंट, आपने उसको ड्यूटी ड्रॉबैक भी देने दिया और साथ ही साथ रिफंड भी लेने दिया, दैट वाज नॉट अलाउड एज पर लॉ.
तो वहां पर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है सर. नो डाउट डिपार्टमेंट इज नॉट टेकिंग एनी adverse action on that. However, we need to ensure that this certificate does not go wrong. तो आपको डबल रिफंड और रेवेन्यू लॉस नहीं करवाने देना. आप ध्यान से समझिए एक और चीज, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स के रिफंड के लिए, यहां पर देखिए एक्सपोर्ट्स के रिफंड के लिए मैं साइड बाय साइड इसलिए आपको ये चीज कवर कराता जा रहा हूं. एक 1.5 टाइम्स वाला क्लॉज ऐड कराया था, 1.5 टाइम्स वाला क्लॉज ऐड कराया था और उन्होंने बोला टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट्स यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई शैल बी द वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय द सप्लायर और सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर एज डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर. ये आप ही को बताना है सप्लायर को कि मैं कितने में ये चीज डोमेस्टिकली बेचता हूं. And when he sells it domestically, whether he is making the export refunds जब आपसे मांग रहा है तो 1.5 माना जाएगा. एग्जाम्पल के तहत समझिए यहाँ पर क्या लिखा है, विद एन एग्जाम्पल देखेंगे क्या होता है इसका मतलब. सर यू आर एक्सपोर्टिंग अ गुड्स टू यूएसए, क्वांटिटी क्या है 1000 यूनिट्स. पहले क्या होता था, शिपिंग प्राइस और यूनिट प्राइस विच एवर इज हायर बोला जाता था. आपने देखा यूनिट प्राइस 100 रुपए है और वैल्यू इन शिपिंग प्राइस इज 90. उसने कहा 100% यू आर एक्सपोर्टर. तो आपने चेक किया आपके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट कोई और बेचता है जी इंडिया में डोमेस्टिक में 50 रुपए के हिसाब से खाली. अब उसने क्या बोला, अब उसने कहा 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई देखो यानी कि 75. तो एक्सपोर्ट टर्नओवर उसके हिसाब से कहां फ्रीज हो गई, 100, 90 या 75 विच एवर इज लोअर. जो सबसे कम प्राइस होगा वो माना जाएगा आपकी एक्सपोर्ट की वैल्यू. सो नाउ इन दिस केस योर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस रिफंड इज रिस्ट्रिक्टेड टू 75 रुपीज. ये चीज भी आपको साथ के साथ चेक करके चलनी है इन केसेस ऑफ रिफंड्स. साथ में उसने रिफंड्स के साथ साथ अब आपको अलाउ कर दिया जैसे बंचिंग ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स. तो आपको इस फाइनेंशियल ईयर्स के बंच को भी उसको अलाउ करके चलना होगा इफ ही इज अप्लाइंग फॉर रिफंड्स. हाउएवर अगेन कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज सर एक फॉर्मूला गिवन होता है पोर्टल के ऊपर जो हमें समझ नहीं आता कभी कभी कि वो कैसे वर्क ऑन कर रहा है. When I say refunds of inverted duty structure and exports, तो एक पोर्टल पे फॉर्मूला डेवलप किया गया है. वो फॉर्मूला कैसा सा दिखता है ये देखिए सर. वो फॉर्मूला दिखता है आपको एक्सपोर्ट्स के रिफंड में और ये देखिए सर, सर ये क्या कहता है, रिफंड ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस रिफंड ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस इनटू योर आईटीसी डिवाइडेड बाय योर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, डिवाइडेड बाय योर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर. वेयर यहां पर देखिए रिफंड क्या होता है सर, रिफंड होता है मैक्सिमम रिफंड एडमिसिबल. मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा इस, बट मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये 1.5 टाइम्स वाला भी क्लॉज ऐड हो चुका है. तो उन्होंने बोला नेट आईटीसी क्या होता है, जितना आईटीसी आपने इनपुट्स या इनपुट सर्विस का अवेल किया है. सर यहीं पे पता चलता है कैपिटल गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, यहीं से पता चलता है कैपिटल गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड हियर. यानी कि कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिल पाता है यहाँ पर. आगे क्या लिखा होता है सर, ये फॉर्मूला भी समझाऊंगा मैं आपको अभी. टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और जीरो रेटेड ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. और एडजस्टेड टर्नओवर में से उसने टर्नओवर में जहां पर उसने आपने ड्यूटी ड्रॉबैक्स या कोई अलग जो उसने
4D वाले रिफंड्स होते हैं वो अप्लाई किए तो उसको एक्सक्लूड किया होता है। ध्यान से थोड़ा सा समझे फॉर्मूला को। सर ये कहता है कि आपने 1000 रुपए लेट से रिफंड अप्लाई करना है, ये नेट आपके इनपुट टैक्स रेट में पड़ा है, इसमें आप मल्टीप्लाई करो कि आपकी एक्सपोर्ट्स की टर्नओवर कितनी है अपॉन योर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, यानी कि इसमें से आप ध्यान से देखिए एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में एक और बात इंपॉर्टेंट क्या लिखी है, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाईज, ठीक है, एंड टर्नओवर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रिफंड इज ऑलरेडी क्लेम्ड अंडर 4A और 4B रूल, यानी कि ड्रॉबैक्स पहले लिए हों। सर आपने जब ये रिफंड अप्लाई करते हो तो यहां से आता है आपका मैक्सिमम परमिसिबल रिफंड, आपको कितना मैक्सिमम रिफंड मिल जाएगा वो लिखा आता है यहां से। यही अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड होता सर, यही अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड होता तो यहां पर बस चेंज क्या हो जाता है कि कितनी आपकी इन्वर्टेड वाली टर्नओवर है अपॉन यहां पर आपकी टोटल टर्नओवर कितनी है माइनस ऑलरेडी कितना टैक्स पे हो चुका है यूजिंग दैट इन्वर्टेड, जो बैलेंस बचता है उसका रिफंड आपको अलाउ हो जाता है, जो बैलेंस बचता है उसका रिफंड आपको अलाउ कर दिया जाता है। सो पर्टिकुलरली व्हाट आई वांट टू से कि यहाँ पर जब भी हम रिफंड अप्लाई करते हैं तो द फॉर्मूलाज आर वेरी साइंटिफिक। ये कहता है मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा, इसके बाद भी वहां पोर्टल पे दो चीजें और की जाती हैं। वो कहता है एक, इस आईटीसी के लेजर में जिस दिन आप रिफंड अप्लाई कर रहे हो कितना इनपुट पड़ा हुआ है, और एक आपने जो रिफंड अप्लाई कर रहे हो आज की डेट में कितना पड़ा है। एक होता है उस दिन पीरियड पे कितना रिफंड पड़ा हुआ था ओरिजिनली, और एक है टुडे जब आप रिफंड अप्लाई कर रहे हो तो अब कितना इसमें बैलेंस पड़ा है। तो आपसे बोला गया है जी 1000 रुपए का तो मैक्सिमम लेट से ये फॉर्मूले से आपकी वर्किंग आती है जी 500 रुपीज, और आपके उस दिन इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में जब आप रिफंड अप्लाई कर रहे थे तो पड़ा था लेट से 400 रुपए, लेकिन आज तक आप रिफंड अप्लाई करने का 2 साल का समय होता है तो यूज कर लिया आपने उसमें से और बचा है आज सिर्फ 250 रुपए। तो लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग देखना होगा 1, 2 और 3, लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग का रिफंड अप्लाई होगा। सर बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में मैं देखता हूं हमसे मिस आउट हो जाती है चीज की ये कैलकुलेशन आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी वाइज नहीं होती, ये टोटल टैक्स वाइज होती है, ये टोटल टैक्स वाइज होती है। कुछ ऑफिसर्स इसको अलग अलग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं करना होता, कुछ ऑफिसर्स इसको अलग अलग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं करना होता। सो पर्टिकुलरली फॉर द फर्स्ट फॉर्मूला व्हाट वी डिस्कस, ये आपको क्यूमुलेटिवली करना होता है। तो जब आप सर्टिफिकेट पे जाते हो तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, आप कहते हो सर्टिफिकेट के अंदर क्या लिखा जाता है, एक सेकेंड, यस सर ये कहता है जी सर्टिफिकेट इज इशूड इन टर्म्स ऑफ आर एग्रीमेंट डेटेड दिस, पता नहीं हमने कभी करा हो अगर तो आप यहाँ लिखे, नहीं करा है तो उसको छोड़ दीजिए। दैट मेसर्स XYZ is a registered person while this is having its principal place this, the applicant has following this, the registration, the applicant filed the refund under, आप जो भी सिनेरियो होगा ये लिखेंगे, a chartered accountant will certify, और उसके बाद there is certain management responsibility, इसके लिए हम उसको बोलते हैं कि एक MRL ड्रॉप किया जाए। इसमें हम एक रिप्रेजेंटेशन लेटर लेकर हम ये कहते हैं कि आपने रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि भाई मेरे पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज के स्कोप है। सर यहां पर क्या बोला है मैंने कहा इंक्लूडिंग, यहां पर क्या है, द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, including preparation and maintenance of all accounting and relevant supports records. The responsibility includes the design, implementation of internal controls to prepare the presentation of the statement of refunds and applying an appropriate refund on the basis of this preparations.
The management is also responsible for ensuring that the applicant complies with the requirement of the rules and the provisions laid down by the GST Act. Sir, यहाँ पे क्या है आपका opinion? We have examined the books and accounts and other records of all the applicant under section 54. Based on our examination and the information and explanation given to us in respect of refund of rupees, this particulars declared by the are true and correct, क्योंकि आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं, and confirm with the books of accounts. The certificate shall be read together with this certificate, और साथ में ही आप एक restrictions of use भी डाल देंगे. सर लास्ट में आप एक restriction of use भी डाल देंगे. Restriction of use क्या है? The certificate is provided solely for the purpose. This is scope limitation. This is your scope limitation. यहां पर आपका स्कोप का लिमिटेशन क्या है वो लिख दिया जाता है. That this certificate is solely for the purpose of submission to the GST authority pursuant to the requirements of section 54. Accordingly, we do not exempt or assume any liability or any other person this certificate is shown and hence come without the prior consent in the writing. यानी कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप सर्टिफिकेट के साथ साथ अपनी ये स्कोप लिमिटेशन भी लिखते रहें. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? दिस सर्टिफिकेट इज फॉर एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज. इट इज फॉर द, यहाँ पर क्या है कि सारी कंप्लायंसेस भी आपको चेक करनी चाहिए कि रिफंड से पहले उसने कंप्लायंसेस की या नहीं की. और यहाँ पर सर्टिफिकेट इज मेड इन द अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस नोट ऑफ द इंस्टीट्यूट. और साथ ही साथ लास्ट में अपना यूडीआईएन जनरेट करना ना भूलें. यूडीआईएन जनरेट करना मत भूलें. चलिए अब थोड़े और डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट्स देखते हैं जीएसटी के अंदर, जैसे कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे. सर सेक्शन 18 के अंदर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं. 4 सर्टिफिकेट्स हैं तो सही. इन सर्टिफिकेट्स को जब आप देखते हैं डीपली तो आपको रियलाइज होता है कि हमारे पास एक और स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन भी है. सर व्हाट आई से, योर जीएसटी की ऑडिट रिपोर्ट इज अ ऑडिट रिपोर्ट, बट यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सर्टिफिकेट. इट स्टैंड्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहां पर सर्टिफिकेट सेक्शन 18(1)(a) का कब मांगा जाता है? ध्यान से देखिए. सेक्शन 18(1)(a) का सर्टिफिकेट मांगा जाता है a person who has applied for the registration within 30 days on which he becomes liable for the registration, and he shall be entitled to take the ITC of stock में जो इनपुट पड़ा है and inputs contained in semi finished or finished goods on the delay day preceding the date from which he becomes liable. इससे अगर डिले पे वो रजिस्ट्रेशन लेता है तो ये अलाउड नहीं होता. सर 30 दिन के अंदर if you are liable to take registration and he takes the registration, then you shall be allowed to take the input tax credit in respect of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished stock or finished goods held in stock, जहां जहां फॉर्म में होगा, and it shall be accompanied in ITC 01. कब देना है आपको? ये देना है where a practicing chartered accountant in where the exceeds 2 लाख की लिमिट. यहां पर एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया, देखिए ध्यान से. ये रहा. सर ये कहता है अपेंडिक्स अंडर द टीजीएसटी और एचजीएसटी एक्ट इन टर्म्स ऑफ 18(1)(a, समरी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल अंडर 18(1)(a. ये कहता है इसमें डालो इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक कितना है, इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड स्टॉक कितना है. इसमें आप यूनिट क्वांटिटी लिखिए जी, केजीज में है, यूनिट्स में है, पीसेस में है, कैसे है, कितनी क्वांटिटी है, वैल्यू कितनी है और उसमें कितना आप आईटीसी ले रहे हैं. ये चीज आपको नीचे सर्टिफाई करनी चाहिए. सर ये चीज आपको सर्टिफाई करनी चाहिए. साथ में अब आप इसमें क्या क्या चेक कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए. यहां पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट क्या है?
कि हमें बुक्स और रिकॉर्ड से रेलेवेंट अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिलेटेड स्टॉक इन सेमी फिनिश्ड और इन इनपुट फॉर्म निकालना पड़ेगा. Check whether the derived data of equal units of input contained in semi finished, ये semi finished और finished की कैलकुलेशन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या जो उसने यूनिट्स आइडेंटिफाई किए वो ठीक भी है या नहीं. फिर आपको चेक करना पड़ेगा यहां पर, साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि रिफंड जो है, अगर आपका यहां पर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को सब्सटैंशिएट करता हो, मैनेजमेंट लेटर को सब्सटैंशिएट करता हो, ठीक है. साथ ही साथ क्या लिखा है यहां पर, नो आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विस मस्ट बी इशूड. यहां पर देखिए सबसे क्रिटिकल क्या है कि कोई भी आपसे वो ना लिया गया हो कैपिटल गुड्स का या इनपुट सर्विस का. तो अल्टीमेटली डबल बेनिफिट्स यहां पर क्रॉस फिर से ना हो जाए. कैपिटल गुड्स के केस में और इनपुट सर्विस के केस में रिफंड यहां अलाउड नहीं है, ठीक है, यहां अलाउड नहीं है. सर यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? यहां तक कोई डाउट है? यानी कि आपको ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है. प्रॉपर्टी ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है. तो ये हमें बहुत ध्यान रखना होगा सर कि हमारा कहीं गलत वो रिफंड अप्लाई ना कर दे इस केस में, या सॉरी इनपुट गलत अप्लाई ना कर ले इस केस में, सो दैट रॉन्गफुल इनपुट टैक्स क्रेडिट ना चला जाए, रॉन्गफुल इनपुट टैक्स क्रेडिट ना चला जाए. ठीक है सर. नेक्स्ट सर्टिफिकेट आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट 18(1)(b) का. 18(1)(b) का सर्टिफिकेट क्या कहता है? ये कहता है अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है वॉलेंट्री तो भी आपको एक दिन पहले का इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगा प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय डिक्लेयरिंग द सेम इन फॉर्म ITC 01. ITC 01 में आपने डाल दिया और आपको रिफंड उसका मिल जाएगा. उसके साथ ये वाला प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट जाएगा 2 लाख रुपए से एक्सीडिंग अगर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा. यहां पर फिर से मैं आपका स्ट्रेस अपॉन करना चाहूंगा कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका मिलेगा? इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक. सर फिर से बोल रहा हूं, इनपुट्स लिखा है, इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स नहीं लिखा है. और आपको ये रिफंड भी साथ में मिल जाएगा. अब इसमें भी अगेन साथ में आपको साथ ये एनेक्जर आपको अटैच करके चलना चाहिए. ये एनेक्जर क्या कहता है अपेंडिक्स, कि आपने कितना इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक है और कितना सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड के बाद में है, ये आपको लगाकर चलना होगा. ठीक है, ये आपको साथ में लगाकर चलना होगा so that when you certify it you have the basis and the working of this calculation जब आप इसको नीचे सर्टिफिकेट दे रहे हैं. लास्टली आपका यूडीआईएन तो इसमें भी आता है. अब 18(1)(c) का जो एक सर्टिफिकेट होता है that is again a very different type of certificate. It says when he ceases to pay tax under section 10. सेक्शन 10 कौन सा होता है? when you cease to pay tax under composition scheme. आप कॉम्पोजिशन से रेगुलर में जब स्विच करते हैं तो भी आपको एक सीए सर्टिफिकेट की अपॉर्चुनिटी दिखती है. यहां पर लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है. ये कहता है ही इज एलिजिबल टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ, ध्यान से सुनिए, input tax credit in respect of inputs held in stock, inputs contained in semi finished and finished, and on capital goods as well, as reduced by prescribed percentage points, which is 5% per quarter. आपको इसमें भी रिफंड मिलेगा, और सॉरी रिफंड के इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. और किस किस चीज का मिलेगा? इसमें कैपिटल गुड्स का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन होता है. और ये कब मिलता है आपको? on the day immediately preceding the day from which he becomes liable to pay tax under regular scheme.
बाय डिक्लेयरिंग द सेम अगेन इन ITC 01। और अगर ये 2 लाख से ऊपर एक्सीड करता है तो यहाँ CA सर्टिफिकेट जो जाएगा वो CA सर्टिफिकेट बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर भी साथ में अटैच किया जाता है। ठीक है, आगे सुनिए सर। इसमें आप क्या क्या चेक कर सकते हैं? इसमें आपके लिए FAR यानी कि फिक्स्ड एसेट रजिस्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज अ कैपिटल गुड्स मैटर ऑल्सो। यहां पर आपको क्या क्या चेक कर सकते हैं सर? यहां पर आपको चेक करना होगा वेदर input tax credit on capital goods have been reduced by 5 percentage points from that date of invoice of the capital goods। सर यहां पर आपको लिस्टिंग ऑफ स्टॉक क्वांटिटी और कैपिटल गुड्स भी चाहिए। सर मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स विद परचेज डेट ऑफ पीरियड ऑफ 5 years और मोर, और इसको फिक्स्ड एसेट रजिस्टर से चेक करिए। Check whether the depreciation on the same has not been claimed on the capital goods under income tax और WDV के उसके रिकॉर्ड्स में आप चेक करिए। सर ये मेरे लिए एडिशनल चेक पॉइंट्स हैं इसमें। साथ ही साथ आप यहां पर चेक करेंगे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये रहता है आपका मैनेजमेंट लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन लगा है या नहीं लगा। सर मैं हमेशा बोल रहा हूँ सर्टिफिकेट रिक्वायर्स मोर ऑफ एक्यूरेसी, यहाँ में डिविएशन के चांसेस कम रहते हैं। तो आप प्लीज 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 इस हिसाब से चलिए कि आपको क्रिटिकली इसके विद इन बाउंडेशंस ही रहना है और अपने आप सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी। डोंट बी एनीवेयर आप इसमें लीनियंट ना होना रिगार्डिंग दी रिप्रेजेंटेशन लेटर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरा सर्टिफिकेट आता है एक 18(1)D का सर्टिफिकेट, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्रॉस D का सर्टिफिकेट। ये कहता है वेयर यू आर एन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन बिकमिंग अ टैक्सेबल सप्लायर। आप एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल में चले गए, एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल के अंदर आप चले गए। When you move from an exempt to a taxable person, the registered person becomes eligible to avail the input tax credit in respect of inputs held in stock, held in finished stock, and on capital goods. So please यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, exclusively used for such exempt supplies on the day immediately preceding such exempt supplies. सर क्रिटिकली ध्यान रखना है हमें इसमें। अगर आपने सबसे पहले याद है आपको मैंने बोला इफ यू मूव फ्रॉम, यहाँ पर आपने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ली और वॉलंटरी ली तो सिर्फ इनपुट्स का अलाउड था, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का इनपुट अलाउड नहीं था। व्हेन यू मूव टू कॉम्पोजिशन टू रेगुलर, आपको सब किस्म के कैपिटल गुड्स का भी इनपुट अलाउड था, इनपुट सर्विस फिर नहीं बोला मैं। यहां पर जब मैं आया एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल में, तो यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स का अलाउड था, which is exclusively used for such exempt supplies, reduced by again this 5 percentage points. ये भी आपका ITC 01 में जाएगा along with that certificate. If it exceeds 2 lakh rupees, a practicing chartered accountant will issue the certificate of 18(1)D. यहां पर आपके लिए अगेन एडिशनल चेक पॉइंट्स आते हैं। मेरे लिए यहाँ पर सबसे बड़ा चेक पॉइंट होगा सेम, मेरे को यहाँ पर चेक करना होगा कौन से एक्सक्लूसिव हैं और 5 परसेंटेज पॉइंट से रिड्यूस किए गए या नहीं किए गए। यहाँ पर मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट और भी ये चीजें चेक करनी होती हैं कि जब मैं एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल की बात करता हूं कि वो एक्सक्लूसिवली यूज होगा। प्रैक्टिकली समझिए, इफ लेट्स से अ पर्सन इज डीलिंग इन टैक्सेबल एज वेल एज एन एग्जेम्प्ट, वहां पर ये आपको डिक्लेरेशन लेके चलना पड़ेगा कि जो कैपिटल गुड्स का वो क्रेडिट ले रहा है इट इज एक्चुअली में यूज फॉर दैट एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ये एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल हुआ भी है या नहीं हुआ, ये भी चेक करेंगे। क्या ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता वो एग्जेम्प्ट वाला टैक्सेबल के लिए यूज हुआ ही ना हो, या वो एग्जेम्प्ट वाला टैक्सेबल बना ही ना हो,
या वो उसने अपनी इंटरप्रिटेशन, क्यों, क्योंकि दिस इज एक्टेड बाय अ नोटिफिकेशन. If anything becomes taxable, it is done by a notification of making an exempt item a taxable item. तो ये चीज हमें चेक करनी होगी साइड बाय साइड. Now comes a certificate of section 18 subsection 3. 18 subsection 3. सर अभी पीछे स्टार्ट ऑफ द सेशन में किसी ने बोला कि मैंने मर्जर के केस में, ध्यान से सुनिए यहाँ क्या लिखा है, सेल, merger, demerger, amalgamation, lease, transfer of business, where the said registered person shall be allowed to transfer the input tax credit which remains unutilized in the manner prescribed in rules by ITC 02. Rules क्या कहते हैं? Rules कहते हैं the provide that transferor shall submit a copy of certificate issued by practicing chartered accountant that such transfer of asset and liability. यहाँ पर एप्लीकेंट को सब कुछ लिखकर देना होता है हमें. यहाँ पर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर क्लियरली ये आइडेंटिफाई करना कि क्या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अनजस्ट तो नहीं हो रहा. सबसे बड़ी बात देखिए सर यहाँ पर क्या है, दैट वी हैव टू चेक विद द कंफर्मिटी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और यहाँ देखेंगे आप कितना आईटीसी एक मैच कर पाए, इसकी वर्किंग करो, और कितना उसमें से ट्रांसफर कर रहे हो ये मैच करके लिख के दीजिए. इसमें हमारे लिए हमें क्या क्या चेक करना पड़ जाता है सर, ध्यान से सुनिए. हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, दैट ट्रांसफरी हैज अ वैलिड जीएसटी आइन. पोर्टल पे जाके उसका जीएसटी नंबर तो चेक कर ले कि जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, और क्या वो मर्जर ट्रांसफर एक्विजिशन एग्रीमेंट्स आप चेक कर रहे हैं कि वो मर्जर ट्रांसफर एग्रीमेंट है. क्यों? क्योंकि अगर ये बिजनेस कंटिन्यूअस बिजनेस की तरह ट्रांसफर नहीं होता तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर ना हो पाता, फिर टैक्स चार्ज करना पड़ता. यहां पर और क्या देखना पड़ता है हमें, डॉक्यूमेंट्स टू द मोड ऑफ ट्रांसफर, सारा कुछ चेक करना पड़ेगा. और हमारे को इन केस ऑफ डीमर्जर एक एडिशनल चीज और चेक करनी पड़ती है, दैट अपोर्शनमेंट इन द वैल्यू ऑफ डीमर्जर स्कीम. क्या अपोर्शनमेंट की स्कीम है, कितने टाइम तक, क्योंकि साल के बीच में भी डीमर्जर हो सकता है, कितने एसेट किसको जाएंगे, कितनी क्या इनपुट कैसे बटेगा, ये सब हमें अपोर्शनमेंट भी करना पड़ेगा. हमें चेक करना पड़ेगा क्रॉस चेकिंग ऑफ आईटीसी टू बी ट्रांसफर्ड द लेटेस्ट रिटर्न्स फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट. ठीक है, एंड ऑब्टेन अ रिप्रेजेंटेशन दैट देयर इज नो चेंज टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट्स ट्रांसफर. और आप इसको पोर्टल पे चेक भी करेंगे. फिर आप चेक करेंगे दैट द इनपुट्स और कैपिटल गुड्स हुज क्रेडिट इज प्रपोज्ड टू बी ट्रांसफर्ड आर आल्सो अकाउंटेड इन द बुक्स. ये हमारे लिए चेक करना इंपॉर्टेंट होगा. और फिर अगेन रिप्रेजेंटेशन लेना जरूरी है. The next certificate that we have already discussed is section 54 certificate, that is to be attached with the refund statements. Next certificate that comes in line is a 29(5) certificate. 29(5) का certificate कब होता है, देखिए, every registered person whose registration is cancelled by way, उसको डेबिट करना होता है अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट जो उसके इनपुट्स में पड़ा हुआ है एज स्टॉक, और inputs contained in semi-finished stock or capital goods or plant and machinery as reduced by 5% per quarter points, and क्या उस पे आउटपुट टैक्स विच एवर इज हायर उसको पे करना होता है, और ये जीएसटीआर 10 में सर्टिफिकेट लगता है. ठीक है, यहाँ पर उसमें रूल 44(3) में क्या लिखा है, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल एस्टिमेट द अमाउंट मेंशन्ड इन 4 पैरा अबव बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइसेस. और यहाँ पर 29(5) का उसको साथ में सर्टिफिकेट अटैच करना होगा बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. यहां पर हमारे लिए चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. क्या क्या हमारे लिए यहां पर चेक करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हमें सर्टिफिकेट इज टू बी रिक्वायर्ड ओनली इफ द टैक्स इनवॉइस इज नॉट अवेलेबल. It stipulates that issuance of a certificate only in case of non-possession of invoices. ठीक है, अगर उसके पास रेलेवेंट टैक्स इनवॉइसेस हैं तो मार्केट प्राइस अवेलेबल ही हो जाता है. वेरीफाई द रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स विद द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वेदर उसका रिटर्न क्यों कैंसिल हुआ है ये समझिए.
corroborate the quantity and values of physical verification from the external statements like बैंक को जाती है, बैंक की स्टॉक स्टेटमेंट जाती है, ये सारी चीजें आप चेक करिए. चेक कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी रिवर्स बाय द मल्टीप्लाइंग इफेक्टिव रेट. आपको रेट नोटिफिकेशन से भी तो चेक करना है कितना टैक्स चेक करना है. फिर आपको ये भी इंश्योर करना है that the amount determined for the input tax credit is reconciled with the ledger balances. Whether there are any stock in transits, क्या कोई stock in transits तो नहीं है. फिर साथ में मुझे ये चेक करना है कि क्या कोई रिवर्सल तो नहीं बनता, और फिर साथ में मुझे ये सर्टिफिकेट अटैच करना होता है. इसके लिए भी अगेन एक अपेंडिक्स फॉर्म लगाया गया है. आप इस फॉर्म को यूज करके साथ में इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक और फिनिश गुड्स को अटैच करके साथ में लगा सकते हैं. नाउ कम्स अ सर्टिफिकेट ऑफ सेक्शन 18 सबसेक्शन 4. ये क्या कहता है? अ पर्सन हु हैज अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन. यानी कि अब आप मूव कर रहे हैं कहां? रेगुलर से कॉम्पोजिशन में. उल्टा केस है सर, ये रेगुलर से कॉम्पोजिशन में जा रहे हैं. shall be liable to pay an amount by way of debit in electronic credit ledger or cash ledger equivalent to amounts held in input as stock on the day immediately preceding the day of exercising such option. इसमें कौन सा फॉर्म जाता है? ITC 03. ये कहता है where the tax invoices relates to inputs held in stock are not available, the registered person shall estimate the above amount based on the prevailing market price and the details so furnished shall be certified by a practicing chartered accountant. ये कैसे देखेंगे आप? आप ये देखेंगे relevant books of accounts के साथ, ये आप देखेंगे relevant books of accounts के साथ, और कब कंपेयर करेंगे, और साथ ही साथ अब आपके डिफरेंट चेक पॉइंट्स भी होंगे. आप करिए कि इसमें ITC 03 में उसने क्या क्या डिक्लेरेशन दिया, और एंश्योर दैट द टर्नओवर इज विद इन द लिमिट्स. क्या वो कंपोजिशन में जाने के लिए सही में एलिजिबल भी है? ठीक है, अगर एलिजिबल नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा, उसका कमेंट मेंशन करना पड़ेगा. थोड़ा सा एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि बैंक स्टेटमेंट को, जो बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट दी है उससे चेक करो. रेट नोटिफिकेशन के लिए रेट्स चेक करो. वेदर द अमाउंट इज डिटरमिन्ड सेपरेटली फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आप चेक करिए. whether the applicant has actually opted for section 10 has been thoroughly verified. ठीक है, whether there are any stocks in transit, और क्रॉस वेरिफिकेशन करके आप GST CMP 2 भी चेक करिए जो रिटर्न्स फाइल हो रही हैं. कोई आपको लगता है कि क्रेडिट अगर रिवर्स करना बनता है तो आप उसको भी साइड बाय साइड रिवर्स करा के चलोगे या उसका कमेंट मेंशन करते चलेंगे. अगेन देयर इज अ फॉर्मेट एनेक्स टू दिस, आप इस फॉर्मेट को यूज करके रेलेवेंटली यूज कर सकते हैं. नाउ अ पर्सन 18(4) में एक दूसरे टाइप का सर्टिफिकेट है. क्या? वेयर अ टैक्सेबल सप्लाई बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स एग्जेम्प्ट. पहले एग्जेम्प्ट से आप टैक्सेबल बने थे, अब आप टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट बन गए. Who has availed the input tax credit shall be an amount by way of debit in the electronic credit ledger inputs contained in inputs or semi-finished or finished and on capital goods used for such taxable supply. जैसे पहले exempt के लिए खाली देख रहे थे हम, अब खाली इसमें taxable के लिए देखेंगे. यहाँ पर क्या बोलता है कि अगर इनवॉइस अवेलेबल नहीं है तो मार्केट प्राइस के हिसाब से चलोगे, और साथ ही साथ इसमें आपके लिए चेक करना जरूरी हो जाता है अगेन रेट नोटिफिकेशन कि क्या रेट से मल्टीप्लाई करेंगे. फिजिकल वेरिफिकेशन फ्रॉम द स्टॉक स्टेटमेंट्स और डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज, वेदर देयर इन ए स्टॉक इन ट्रांजिट, और हमारा ये सर्टिफिकेट के साथ फिर से ऐसा वाला एक अपेंडिक्स एनेक्स हो सकता है. बाकी के सर्टिफिकेट्स आर लाइक स्पेसिफिक सर्टिफिकेट्स, जैसे कि DIPP वाला सर्टिफिकेट उन्होंने बाय नोटिफिकेशन कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को देना है, दैट ही इज नॉट ड्रॉइंग एनी अदर बेनिफिट्स वहां पर. और similarly the next certificate comes for the DPP received input from any other business premises. इसमें भी यूनिट्स का एक्साइज के लिए रिलेटेड आपको डिक्लेरेशन लेकर चलना होता है. तो हमारे सर्टिफिकेट्स की लिस्ट बहुत डिफरेंट और वेराइटीज की थी, और डिफरेंट सर्टिफिकेट्स कवर किए जाते हैं यहाँ पर. सर अमी जी, कैन वी हेड टुवर्ड्स नाउ क्वेश्चंस और आपके प्रैक्टिकल क्वेरीज रिलेटेड टू सर्टिफिकेट्स?
आदित्य जी, अदरवाइज मैं आपको एक दो चीजें और, हाँ जी आदित्य जी। Because there are no questions in the chat box as such, so you can continue. But and last 15 minutes you can take up the questions of the audience. ठीक है। So now when we head towards the certificate के पोर्शन के बाद हमारे को ध्यान रखना होता है सर, मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंटली यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, अब आप स्क्रीन पर नोट करते जाएंगे। ये देखिए सर, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है सर्टिफिकेट इशू करते समय। देयर आर मल्टीपल टाइम्स जहां पर हमारे को व्हेन वी आर इशूइंग अ सर्टिफिकेट वी आर स्टक अप विद सर्टेन क्वेश्चंस जो हमने लिखे थे, लाइक डॉक्यूमेंटेशन। व्हेन वी पोस्ट फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, माय फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन कम्स इन पिक्चर इज MRL, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, जो बार बार मैंने आपको पॉइंट आउट भी किया कि यहाँ पर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लेना, यहाँ पर MRL ले सकते हैं, यहाँ पर मैनेजमेंट से उसका रिप्रेजेंटेशन हम ले सकते हैं। द सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन कम्स इज योर वर्किंग। सर वर्किंग कैसी हो सकती है, लाइक रिलेटेड टू योर इनपुट्स, जो आपने इनपुट्स की वर्किंग मांगी उनसे एज ऑन डे, या अगर आपने उसको बोला कि मेरे पास मार्केट प्राइस से रिलेटेड है, तो मार्केट प्राइस से रिलेटेड आप लाइक काइंड और क्वांटिटी के इनवॉइसेस लीजिए उससे, और वो सब उसको फाइल में लगाइए। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या आता है मेरा सर सर्टिफिकेट के केस में, यहाँ पर आप सैम्पलिंग को नहीं बोल सकते कि जी मैंने सैंपल उठा लिए। आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको एग्जॉस्टिव वर्किंग करनी होती है। मुझे नहीं पता कि सर्टिफिकेट इशू करने में कभी कभी कुछ लोग बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं और कभी कभी बहुत जल्दी सर्टिफिकेट दे देते हैं। I say take your reasonable time while checking the accuracy of that certificate. There are many times when we see that there is a refund certificate applied and posted on the portal, और वो स्कैन करके लगा भी दिया जाता है, और उस सर्टिफिकेट में हमारे में अमाउंट की कैलकुलेशंस कि ये अमाउंट हम रिफंड का सर्टिफाई कर रहे हैं, that this is not any unjust benefit unreached to any other person. सर उसकी वर्किंग आपको एक्सेल में या वर्किंग आपको अपनी फाइल में अटैच करके चलनी होती है, सो दैट इन फ्यूचर इफ दैट सर्टिफिकेट कम्स इनटू परव्यू और क्वेश्चन, आपको ये चीज का ध्यान हो। द नेक्स्ट थिंग विच वी ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड इन अ सर्टिफिकेट पोर्शन इज, हमारी जब डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है तो हमारे को डॉक्यूमेंटेशन में साथ साथ ये भी दिखाना होता है व्हाट ऑल अजम्पशंस हैव यू टेकन। सर मैं ये हमेशा मान के चलता हूँ हर सर्टिफिकेट की एक फाइल होनी चाहिए, and you must take any assumptions to that. Whenever you take any assumptions related to a certificate, that also should be kept in file, so that in future if you issue any query by the department, if you have been issued, आपके पास उस सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारी assumptions भी होनी चाहिए। सर कुछ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जहां पे आपको वैल्यूएशन की नीड पड़ सकती है। सर तो एक्सटर्नल पर्सन को साथ में रखने के लिए कोई भी आप पीछे मत हटिएगा। इफ यू वांट एनी एक्सपर्ट एक्सटर्नल एडवाइस, गो फॉर इट। लाइक इन केसेस ऑफ वैल्यूएशन, आपको वैल्यूएशन की बात करूं तो जब आपको कैपिटल गुड्स और आईटीसी और इन सब के वैल्यूएशंस करनी पड़ती हैं, इसके बारे में भी आपको अगर कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट चाहिए तो यू कैन गो फॉर दैट एक्सटर्नल एक्सपर्ट एज वेल। Coming next into picture is very important. Another aspect is, सर हमारे लिए जब सर्टिफिकेट इशू करना होता है तो द लेवल ऑफ एक्यूरेसी दे एक्सपेक्ट इज 100%. फॉर दैट वी नीड टू एक्चुअली पुट इन प्लेस इज पर्टिकुलर एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन। मैं आज आपसे पूछता हूं एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज इन केस ऑफ रिफंड्स। जब रिफंड का सर्टिफिकेट बनाया जाता है, when we say this is the refund that has been applied, वहां पर साफ लिखा हुआ है कि आप IGST का रिफंड पहले अप्लाई करिए एंड देन CGST और SGST का इक्वल रिफंड अप्लाई करिए, एंड अगर तब कुछ बच जाए तो फिर आप उसको लास्ट पोर्शन में से एक्सेप्ट करके रिफंड ले लीजिए। कितने लोगों ने ये मैट्रिक्स फॉलो नहीं किया होता रिफंड का, कितने लोगों ने रिफंड का मैट्रिक्स नहीं फॉलो किया होता। So what I particularly suggest them, if you have not followed this matrix, then there can be a typical difficulty in this case. आप यहाँ पे अब आप एक सर्टिफिकेट दे रहे हो जहां पर
ये मैट्रिक्स फॉलो नहीं है और आपका कोई कमेंट नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो योर सर्टिफिकेट बिकम्स इन क्वेश्चन। ये रिफंड आपने कैसे कैलकुलेट किया? क्या पता आप कहते हो जी 10 लाख रुपए का रिफंड का बेनिफिट किसी को एनरिच नहीं हुआ, और अगर प्रॉपर मैट्रिक्स फॉलो किया गया होता, अगर प्रॉपर मैट्रिक्स फॉलो किया हो गया होता तो रिफंड निकल के आता लेट्स से 6 लाख रुपीस। सो माय पीस ऑफ सजेशन and request to all humbly is that go for the applicability of notifications properly. अगर आप सर्टिफिकेट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में चेक करते हैं नोटिफिकेशंस को, तो दैट बिकम्स अ टिपिकल टफ टास्क देन। द अनदर typical aspect for refund becomes, in my purview, is certificates needs to be actually properly shared with any discrepancy. मैं ये कहना चाहता हूँ शेयर्ड विद डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है? पीपल टेंड टू, मैनेजमेंट विल टेंड टू हाइड सर्टेन फिगर्स एंड फैक्ट्स एंड एनी डिस्क्रिपेंसीज। आई ऑलवेज से कि आप एक नोट मेंशन करके चलिए सर्टिफिकेट के अंदर, वेर एवर यू फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसीज ऑल्सो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर आपने ये देखा कि कोई रिफंड अप्लाई कर रहा था या अपना कोई ITC 02 भर रहा था और उसने कोई आपसे सर्टिफिकेट साइन कराया और आपको इससे रिलेटेड कोई और गैप भी दिखता है, लाइक सपोज इन केस ऑफ रिफंड वी many a times find that people have also been taking refund of any ITC for which 180 days payment has not been made. तो मैं ये कहता हूं सर इसका भी एक प्रॉपर आप एनेक्सर बना के साथ में फाइल अटैच करके चलें, सो दैट यहाँ पर नीचे एक प्रॉपरली यहाँ एक रिमार्क लिख के चलिए that there were many instances or few instances noted where the input tax credit was actually not allowed और आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ही रॉन्गली अवेल्ड है, तो आपका रिफंड भी तो रॉन्ग क्लेम हो रहा है और आप उसको गलत सर्टिफाई कर रहे हो, आप उसको गलत सर्टिफाई कर रहे हो। Let's suppose in case of exports, I have seen many cases in case of exports, when we say export of service, there is a note that you need or you must mention that there many times you will see a situation when payment has not been received within 1 year, or you will see certain circumstances जहां पर आपकी पेमेंट आपके हिसाब से फॉरेन करेंसी में नहीं है, लाइक दैट इज रिसीव थ्रू पेपाल। सर आप ये तो लिखिए कि FIRC या BRC बैंक रिकंसिलिएशन बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट आया है या नहीं आया, ये भी आपको साइड बाय साइड चेक करके चलना चाहिए। पर्टिकुलरली व्हाट आई हैव सीन अगेन इन सर्टिफिकेट्स कि जब मैं बात करता हूं GST की, इट शुड बी मेड विद कॉशन, क्योंकि जब सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो वहां पर आपसे सर्टिफिकेट इसलिए नहीं मांगा जाता कि रिफंड अप्लाई हो जाए, इसलिए नहीं मांगा जाता कि ITC ट्रांसफर हो जाए, इसलिए नहीं मांगा जाता कि आपका कैपिटल एसेट का क्रेडिट मिलने लग जाए। सर सर्टिफिकेट इसलिए आता है पिक्चर में क्योंकि हमारे को एक अश्योरेंस देनी होती है that everything is as per verified books of accounts, is as per, again I will say, in tallying and in line with the proper documents given in place with the management. So we have to understand that certificate has to be, again we have to do with caution. Again our institute also takes UDIN, तो यहाँ पर भी इसकी रीवेरिफिकेशन कुछ लोग करते हैं और वहां जाकर इस सर्टिफिकेट को चेक और टेस्ट भी करते हैं। तो मेरे लिए सर्टिफिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं साथ में बोल रहा हूं, इट इज योर अपॉर्चुनिटी एज वेल एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो नाउ इफ we can head towards question answers.
Amish ji, Aditya ji, can we head toward question answers now? Actually, before I stop sharing my screen, if anyone wants to note down my contact number, they can note it down. It is 8447137367. In case I can be of any help regarding GST, feel free to contact me. Don't drop a WhatsApp. आप प्लीज कॉल करके मिस कॉल मार के छोड़ देंगे. आई ट्राई टू कॉल यू बैक. इन केस आपको आज सर्टिफिकेट्स वाला सेशन वैल्यू एडिटिव लगा हो तो आई होप आप अपना फीडबैक पॉजिटिव पोस्ट करिए, और अगर नहीं लगता तो आप फीडबैक टू इम्प्रूव पोस्ट करिएगा जरूर चैट बॉक्स में आफ्टर बिफोर वी एक्चुअली क्लोज द सेशन. And before I actually hand over to Amish ji, Aditya ji, and to the whole study circle, I would like to again handfoldedly give my sincere thanks. Now, if they allow, we can head to question answers. Yes, sir, we can have a question answers. So only one question is there. A has not paid GST on RCM, state government services, for the period 1718 to 1920. Today he has to pay the same. Amount is huge. Whether he is eligible for the refund? If yes, what is the procedure? Is there any certificates needs to be provided by CA in this case? Sir, ये क्वेश्चन पूछा है हमसे बसंत जी ने. बसंत जी ने, राइट. बसंत जी, हमें बहुत ध्यान रखना होगा इस चीज में. आप आरसीएम के केस में आज एक चीज नोट कर लीजिए. whenever you have not paid the RCM, pay the RCM now, take the input tax credit, but don't take the refund. आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा इस केस में. सर मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें आपका इंटरेस्ट इम्प्लीकेशंस आ जाएगा. आपका इंटरेस्ट पेबल आ जाएगा एट द रेट ऑफ 18%. हाउएवर इनपुट डिनाई नहीं होगा अमित जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ. ठीक है, इनपुट मिल जाएगा, बट आप अगर मुझे बोले रिफंड मिल जाएगा, नहीं सर. तो सीए सर्टिफिकेट कहीं पे पिक्चर में नहीं आता है. So there is no other question. I think your session was very good. तो कोई query सर है? आप, हाँ, अगर क्वेश्चन किसी को सर्टिफिकेट से ना लेकर और किसी पॉइंट से भी हो, फील फ्री टू आस्क. मतलब लेट्स नॉट बी कन्फाइंड टू सर्टिफिकेट्स, बिकॉज क्या पता जीएसटी में और कोई डाउट हो किसी का भी. तो जीएसटी में तो बहुत डाउट्स है सबको. Anyone, any can off mute themselves and can ask any question is there if anything is there. Obviously, GST is a ever dynamic and Yes, sir. constant change. So मैं तो यही कहूँगा, GST is a daily learning aspect and daily new things are being getting added in GST. We keep on learning, we keep on adding to GST. और ऐसा नहीं होता कि as a speaker we are giving, we are just taking away more of thoughts, more of related learning. अमीन जी कह रहे हैं अप्रॉक्स फीस टू बी चार्ज फॉर सर्टिफिकेट्स. मैंने ना सर ये क्वेश्चन शुरू में एक्सपेक्ट किया था कि लोग कहेंगे कि आप ये जरूर कवर करना कि सर्टिफिकेट की फीस कितनी लेनी चाहिए. सर दैट इज अगेन, मैं आपसे ये बोलूंगा कि सर्टिफिकेट्स की फीस टोटली वेरीज फ्रॉम योर क्लाइंट एंड सब्जेक्टिविटी. इफ यू से व्हेन वी टॉक अबाउट रिफंड सर्टिफिकेट, आप ये नहीं कह सकते कि मैं रिफंड का परसेंटेज फिक्स कर दूं. आप ये कह सकते हैं सर माई फीस फॉर द वर्किंग ऑफ दिस रिफंड. अगर आप मुझे कहते हैं अप्रॉक्स फीस, अप्रोक्सीमेटली फीस कोई फिक्स नहीं हो सकती सर. इसमें अप्रॉक्स फीस नहीं रहती. मैं ये कहता हूँ मिनिमम आप अपना थ्रेशोल्ड डिसाइड करिए कि मैं लेट्स से 10,000, 15,000, 20,000 पर सर्टिफिकेट से नीचे नहीं लूंगा, बिकॉज योर कॉस्टिंग इज द डिसाइडिंग फैक्टर. मैं हमेशा कहता हूँ आपके कितना स्टाफ लगेगा, कितनी आपकी पर आवर की इन्वॉल्वमेंट होगी. सर वट एवर वेन एवर वी quote any certificate, let me be very frank with you, whenever we quote here in any certificate, what we actually do, we actually put in place like I have decided my per hour costing is this, my per hour article costing is this, my per hour chartered accountant cost is this, semi qualified is this. I see how much involvement per hour basis it will be done from man hour basis to this certificate, and I add my margin to that and quote it actually. Then Aminji, I'm pretty much sure if you do costing like that, you will surely be happy when you get the money. Or sir, practically, let me be frank and you will appreciate the fact, once UDIN came into picture,
the certificates for which you were not able to charge fees, actually UDIN helped you for getting the quote of that certificate also. हरीश जी कह रहे हैं GST refund, can it be applied now? No, Harish ji, but yes, what I can say, let us expect in 3-4 days when the budget is coming, we might have some amnesty or some relaxation scheme on account of COVID for this. Harish ji, I am expecting, but I cannot commit. As of now, there is no such scheme in the law. GST. So one more question is there. GST refund of 17-18, can it be applied now? ले लिया अमित जी, ले लिया क्वेश्चन. ले लिया ना? हाँ, कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं अपनी पीपीटी और फाइल में अमित जी को शेयर कर दूंगा और आई होप दे विल सर्कुलेट टू ऑल द मेंबर्स. Yes, sir, definitely. और So we can conclude the session. So first thing, I thank you for accepting the invitation. Second thing, your presentation, आपने जो PPT थी, आप जिस हिसाब से समझा रहे थे, it was very, I can say, a presentable manner, or it was easy to understand the things whatever you had explained today. I hope the members have benefited. I, on behalf of Andheri Oshira CP Study Circle, gives you a hearty vote of thanks. Thank you, sir.